Hello everyone, I'm Dr. Swapna Thorgule and today we are going to discuss about the scope of human resource management. The first point is it is a tool for managerial effectiveness and organizational development. HRM involves a number of functions related to the personnel like recruitment, job analysis, job designing, etc. These functions provides opportunities to the manager for improving their skills and it has a wide scope for managerial skill and organizational development. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमंस और रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। उसकी वजह से उसमें रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसकी वजह से मैनेजर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि उसकी वजह से उनकी स्किल इम्प्रूव होती है और उसकी वजह से मैनेजरियल स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होती है। सी द नेक्स्ट वन, इट्स द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द लीगल कंप्लायंस. It is a duty of HR department is to maintain good relationship between the employees and employer. For a continuous development and growth of an organization, HR department try to avoid conflict. The HR department have to follow the legal restrictions also. The Labor Act guides to HR to solve disputes and provide a good facilities to the employees. ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना ये HR डिपार्टमेंट का काम है और वॉटेवर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो अवॉइड करना, हेल्दी और साउंड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और बहुत सारी ऐसे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं। सी द नेक्स्ट वन, द कॉम्पेंसेशन, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. The every employee has got a different position in an industry. According to the position, HR department decides their benefits and their compensation. Hence, to protect benefit and their compensation of employees, it is also the challenge before the human resource department. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एज पर द पोजीशन उनका बेनिफिट और कॉम्पेंसेशन डिसाइड करना पड़ता है एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू द HR मैनेजर एंड इट इज़ अ बिग चैलेंज बिफोर देम. सी द नेक्स्ट वन, wages and salary administration, benefits and rewards and the welfare schemes. According to the Industrial Act, the wages of workers and their working hours should be fixed properly. Every organization has to follow the legal rules and regulations related to the wages, benefits and rewards and welfare schemes are always motivating to the employees for a good performance. जो भी वेजेस रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वेजेस रिलेटेड एंड वर्किंग आवर रिलेटेड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है और जो भी बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स हैं और एनी अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए. सी द नेक्स्ट वन, रिटायरमेंट एंड द सेपरेशन. After fulfilling a service years, by law, employee
is separated from the organization. In education sector, people retire after the age of 16, and in army, tenure, that is short service commission, that is known as SSC, is 10 plus 4 years. After completion of this tenure, they can continue their job or can accept the retirement. Hence, to designing a retirement age and retirement benefit is the important task before the HR department. Separation is maybe the voluntarily or the forcefully. Hence, in such cases, the HR department has to give all the benefits to the employees. रिटायरमेंट मतलब जो भी ईयर्स बताए हैं कि 60 ईयर्स के बाद रिटायर होना है, 30 ईयर्स के बाद रिटायर होना है, तो फिर आफ्टर एज एम्प्लॉयज़ के सर्टन एज के बाद वो ऑटोमेटिक रिटायर होता है, मतलब कंपनी से सेपरेट होता है। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में रिटायरमेंट का एज है 60। अगर प्रोफेसर के नहीं तो टीचर का एज अगर 60 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाते हैं। और आर्मी में उनका जो पीरियड है, उनका ड्यूरेशन है वो 10+4 है, मतलब 14 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अगर उन्हें रिटायर नहीं होना है तो फिर वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो रिटायरमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब हर एक जॉब में, हर एक कंपनी में सर्टन एज के बाद रिटायरमेंट आती है। अब वो रिटायरमेंट भी वॉलंटरी हो सकती है, मतलब एम्प्लॉय खुद से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो फिर उससे रिलेटेड जो भी वर्क है, रिटायरमेंट कैसी भी हो, परमानेंट रिटायरमेंट हो एज पर द रूल्स और वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, तो फिर HR डिपार्टमेंट को उनके बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। और सेपरेशन जो है वो भी वॉलंटरीली हो सकती है, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ को दूसरे कंपनी में जाना है तो फिर वो सेपरेट हो सकता है, नहीं तो फोर्सफुली अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी भी उन्हें निकाल सकती है। तो फिर इन दोनों कौन से भी केस में, वॉलंटरीली हो या फोर्सफुली हो, कौन सा भी सेपरेशन हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी उसे बेनिफिट है, कंपनीज के पास जो बेनिफिट्स है, उसने जो काम किया है उसके लिए जो उसे बेनिफिट मिलने चाहिए, वो बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को उन्हें देने पड़ते हैं। सी द नेक्स्ट वन, इट्स अ जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड रिव्यू। Job evaluation, performance appraisal, these functions have a large scope in HRM. Performance appraisal is an yearly or the half-yearly activity conducted by the HR department. Job evaluation is prior to performance appraisal. The employee's performance is evaluated on various parameters. After that performance appraisal, that performance is appraised. It means पहले performance evaluation होता है, उसके बाद performance appraisal होता है and then reviewed, और बाद में उसका रिव्यू दिया जाता है। तो फिर as per this point, the job evaluation मतलब जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के हिसाब से पहले उनका जॉब इवैल्यूएट किया जाता है, बाद में उनका परफॉर्मेंस अप्राइज किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी रिव्यू हैं वो दिए जाते हैं। सी द नेक्स्ट वन, the seventh point is the human resource training and development. For the development of organization and employees, there is always need to find and design
the human resource training and development. For the development of organization and employees, there is always need to find and design training program for the employees. Training program provides the continuous education to the employees. The HR department has to arrange the best training programs and they have to assign to the concerned employees. कंपटीशन की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करने पड़ते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है. और ट्रेनिंग ये एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोवाइड करता है. और किसको कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ये डिसाइड करना, ये काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है. सी द नेक्स्ट वन, staffing, recruitment, selection, placement and induction. These are the continuous functions of the human resource department. Because of retirement, voluntary separation, switch job, enlargement of an organization, etc. Because of this, the company has to recruit a new talent continuously. And the campus recruitment is a favorite method of all the multinational companies. कंपनी को कंटिन्यूसली स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन ये प्रोसेस करनी पड़ती है. दिस इज़ अ मेन वर्क of the human resource department and it is a continuous work. क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनीज में किसी की रिटायरमेंट होती रहती है, कोई तो जॉब छोड़ के जाता है, कोई जॉब स्विच करता है. नहीं तो अगर कंपनी के एनलार्जमेंट की वजह से, मतलब कंपनी का अगर एरिया बढ़ता है, वर्क एरिया बढ़ता है, तो फिर उसकी वजह से नए नए टैलेंट रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब नए नए लोगों को रिक्रूट किया जाता है. और बहुत सारी MNC कंपनीज में अब कैंपस रिक्रूटमेंट इट इज़ अ फेवरेट मेथड टू देम. सी द नेक्स्ट वन, द जॉब डिजाइनिंग एंड मैन पावर प्लानिंग. आफ्टर रिक्रूटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब of HR department is to design job and assign their duties and responsibilities. Manpower planning means the company has to appoint people in a right size. Understaffed and overstaffed both should be avoided by the company. एक बार एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट हो गई तो उसके बाद प्रॉपरली उसका जॉब डिज़ाइन करना ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है. मतलब उस जॉब के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ये सब कुछ बताना, जॉब प्रॉपरली डिज़ाइन करना, डिस्क्राइब करना, ये काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है. और उसके साथ साथ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करना, ये काम भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग एंड द ओवर स्टाफिंग दोनों भी अवॉइड करनी है. जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग उन्हें अपॉइंट करने पड़ते हैं. सी द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट, द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज. The various functions of the HR department creates a strong system and every organization has their own strategies regarding recruitment, staffing, training, compensation, benefits, wages and salary, etc.
जो भी सारे फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उसकी वजह से उनकी जो सिस्टम होती है, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो सिस्टम होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। और हर एक कंपनी की पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज रिक्रूटमेंट के रिलेटेड हो, स्टाफिंग के रिलेटेड हो, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन के रिलेटेड हो, वेजेस एंड सैलरी के रिलेटेड हो, जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हर एक कंपनी की अलग अलग रहती है उनके हिसाब से। ओके, थैंक यू वेरी मच।